तो yesterday we did the function of random variable. हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक single variable में, right, in a single variable, if we have y as a function of x, so y is equal to some function of x, y is equal to x square or y is equal to z square, right? Say suppose I have y some function of x. तो हमने कल देखा था अगर मुझे x का probability density function पता है, अगर मुझे x का probability density function पता है, then what will be the probability density function of y? किसी को याद है what was the relation? What was the probability density function of y? Probability density function of x into mod of, अब याद आया, dx by dy. So probability density function of y will be what? Probability density function of x into mod of dx by dy. So let us take one question on this. So if you see, these are the questions from your book only. Let us see example number 2. The probability density function of a random variable x is given by this function. F of x is equal to x square over 81. X is from -3 to 6 and 0 otherwise. Find the probability density for the random variable u, where what is u? U is 1 by 3, 12 minus x. तो अब देखो एक ही वेरिएबल है इसमें, only x is there. So u is a function of x, right? So we know जब एक फंक्शन होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं. अब हमें क्या करना है? So हमें g of u निकालना है. We have to find the probability density function of u. So we have to find the probability density function of u. तो हमें पता है what will be the probability density function of u? Probability density function of u will be probability density function of x into mod of dx. अब यहाँ पे y की जगह क्या है? du. तो अगर अब मुझे dx by du चाहिए तो मुझे पहले x की वैल्यू in terms of u चाहिए होगी. Now what is given to me? u is what? u is 1 by 3 into 12 minus x. तो अब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो अगर मैं 3 को उधर भेज दूं तो क्या आ जाएगा? 3u, और x को इधर भेज दिया और u को इधर भेज दिया तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 minus 3. बेटा क्लियर है? तो अगर आप देखो 12 minus 3u is x, तो अगर मैं यहाँ से dx by du निकालूं, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू u कितना आ जाएगा? What will be dx by du? What will be derivative of x with respect to u? Constant का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, so derivative of x with respect to u will be minus, right? तो अगर अब मैं यही फॉर्मूला लगाऊं, so what will be g of u? So g of u will be f of x. अब अगर आप देखो f of x सिर्फ -3 to 6 में डिफाइंड है, अदरवाइज इट इज 0. तो ऑब्वियसली g of u भी किसी रेंज में डिफाइंड होगा, so कुछ रेंज में ये 0 होगा, so 0 अदरवाइज. So f of x, तो यहाँ पे f of x कितना आ जाएगा? x square over 81 into mod of dx du. mod of dx du कितना हो जाएगा? 3. बेटा क्लियर है? अब अगर आप देखो g of u is a function of, g of u किसका फंक्शन होना चाहिए? What is g of u? What is g of u? Probability density function of u. So it means it has to be function of u. But हमने तो g of u में लिखा है x square over 81. तो हमें x को in terms of u लिखना पड़ेगा. बेटा is it clear? तो ये क्या बन जाएगा? x square over 27. But x की वैल्यू कितनी थी? 12 minus 3u का होल स्क्वायर ओवर 27. गर्ल्स क्लियर है सबको? अभी भी एक चीज हमने और नहीं करी, क्या? रेंज. इफ यू सी, इसकी रेंज भी हमें देनी पड़ेगी, फिर रेंज निकालोगे. तो अगर आप देखो, यस, अगर आप देखो x की रेंज कितनी गिवन है? x की रेंज गिवन है -3 to 6. ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज डिफाइंड इन द रेंज ऑफ -3 to 6. x lies in the range of -3 to 6. और x की वैल्यू कितनी थी? अभी हमने u के टर्म्स में x की वैल्यू निकाली है. इसका मतलब क्या हो गया? 12 minus u lies in the range of
-3 12 - 3u, yes, and 6. तो अब बस अब यहाँ से आपको u की रेंज निकालनी है, तो सबसे पहले तो इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा 4 - u is greater than -1 and less than 2. अब मुझे 4 नहीं चाहिए, तो सारी तरफ 4 माइनस कर दो, 4 माइनस कर दो, जैसे 4 माइनस करोगे इधर -5, इधर -u और इधर कितना आ जाएगा -2. अब हमने क्या करना है, -u नहीं चाहिए मुझे, u चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, बट हमें पता है जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो इक्वालिटीज चेंज हो जाती हैं, तो क्या आ जाएगा 2 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा. So u की रेंज कितनी हो गई 2 to 5. So if you see g of u is this function. Is it clear बेटा? All of you girls, आपको क्लियर है बेटा सबको? Yes ma'am. Right. So ये जो हमने सिंगल वेरिएबल में किया था, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उसमें. अब हाँ, so अगर आप देखो एवरीवेयर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सिर्फ छोटी छोटी है. अगर आपने पीडीएफ निकालना था, पीएफ निकालना है, फंक्शंस छोटे छोटे हैं, बट आपको कंसेप्ट्स पता होने चाहिए. इसमें इस कोर्स में प्रैक्टिस है. देखो बेटा, फॉर बोथ द क्लासेस, अगर ये अड़ जाए कोर्स तो ये अड़ जाता है, तो कई बार ये 2-2 साल नहीं निकलता. Don't consider this course as this course is like differential equations and everything. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आगे. This is the reason मैंने कल क्वेश्चन दिया था, असाइनमेंट दी है. अगर मैं सारे क्वेश्चंस क्लास में करने बैठूंगी तो मैं आपको मैं आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस. और मैं फिर भी आपको, जैसे मैंने कर्टोसिस तक आपको जो असाइनमेंट दिया एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मोर और लेस वैसे ही क्वेश्चंस बनते हैं. तो अगर आप वो 10-15 क्वेश्चंस, उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हुए हैं, तो अगर आप वो वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो देन इट मींस. तो इस कोर्स को ऐसे नहीं सोचो कि आप लास्ट पे बैठ के इसको कर लोगे, हो जाएगा. नो. अगर अभी शुरू नहीं किया तो आज से जाके जो आपकी सीपी की तैयारी है, पीडीएफ पीएमएफ वाला पोर्शन जिसको दिया है, आप असाइनमेंट इधर से प्लीज स्टार्ट सॉल्व. क्वेश्चंस, नॉट क्वेश्चंस. हाँ 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 हाँ. Okay, let us move. If you see here also every question has come in G and U. So now x and y are two independent. Independent means हम, so यहाँ से independent. So now we understand all the words. So x and y are two independent. तो independent का मतलब क्या हो गया कि इसकी joint distribution को आप break कर सकते हो. So f of x into f of y. They are identically distributed. Identical का मतलब क्या होता है? Same. Means दोनों की distribution भी same है. So they are two independent and identically distributed. इसको कई बार short में IID भी लिखते हैं. IID. So I means independent, I means identical, distributed. Random variables with common PDF as f of x is equal to 1. X lies between 0 and 1. So obviously f of y भी कितना हो जाएगा? 1 और y lies between 0 and 1. So behavior is totally the same. So the question is find the PDF of W. W is the function of x and y. So x by y. तो अब सिंस यहाँ दो रैंडम वेरिएबल्स आ गए, इसलिए ये जॉइंट वाला केस बन गया. राइट. सो अगर आप देखो यहाँ पे आपकी मर्जी है, जो हमने कल आर्टिकल्स किए थे हमने u और v में किए थे. तो अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप ये भी लिख सकते हो कि विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी विल रिप्लेस w by u. राइट. अदरवाइज हम w को लेके भी चल सकते हैं. तो u is w, बस दिमाग में इतना रखो, u is w. तो यहाँ पे w कितना गिवन है? x by y. बट हमें दो वेरिएबल्स चाहिए होते हैं जॉइंट में. हमने कल जो आर्टिकल किए थे हमें u और v चाहिए होते हैं. एक वेरिएबल तो हमें दिया हुआ है. लेट अस टेक द अदर वेरिएबल. लेट अस टेक सम वन मोर वेरिएबल. राइट. लेट अस टेक सम u where u is y. इज इट फाइन बेटा? इज इट फाइन? हमारे पास x और y है, तो हमें दो रैंडम वेरिएबल्स चाहिए. अगर आपने कल आर्टिकल्स याद हो, हमने u v लिया था, तो यहाँ पे क्वेश्चन में वो w ले रहा है. तो प्लीज दिमाग में, so w is nothing but your u and u is nothing but your v. एक मिनट, मैं दोबारा एक चीज बोल रही हूँ. so that's why, because बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है. You can write this without loss of generality. So without loss of generality. So without loss of generality, replace
W by U, ताकि आपको आपका आर्टिकल जो आपने क्यूरी करी है वो सेम हो गई। सो देयरफॉर U का मतलब क्या हुआ? सो व्हाट इज U हियर? x प्लस वाई, x बाय वाई। अब हमें एक वेरिएबल दिया हुआ है, अगर आपको याद हो हम दूसरा वेरिएबल अपने आप से एज्यूम करते थे, राइट? सो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, लेट y इज इक्वल टू v। तो अगर आप देखो अब देयरफॉर यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज v। तो अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दूं तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? व्हाट इज x? uv। बिकॉज हमें जैकोबियन निकालना है, अगर आप तो हमें रिलेशन चाहिए वेरिएबल्स में। अब हमें पता है, हमने आर्टिकल किया था जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ uv will be what? G of uv will be what? Joint distribution of xy into mod of Jacobian। ये कल हमने फॉर्मूला किया था, joint distribution of uv is equal to what? Joint distribution of xy into mod of Jacobian। बेटा क्लियर है all of you, right? तो अब हमें ये सब चीजें निकालनी है। अब now what is given to me in the question? It is given to me that x and y are independent। इसका मतलब क्या हुआ? f of xy किसके इक्वल हो जाएगा? f of x into f of y। और ये दोनों मुझे कितना गिवन है? What is the distribution of x? कितनी गिवन है? क्वेश्चन में x की डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है? 1। y की भी 1 है, बिकॉज दे आर सेम, दे आर आइडेंटिकल। बेटा आपको समझ में आ रहा है, राइट? दे आर आइडेंटिकल, x एंड y दे आर आइडेंटिकल। तो x की डिस्ट्रीब्यूशन भी 1 है और y की डिस्ट्रीब्यूशन भी 1 है। तो इट मींस f of x भी 1 हो गया, f of y भी 1 हो गया। हमें सिर्फ जैकोबियन फाइंड करना है, राइट? सो नाउ व्हाट विल बी द जैकोबियन? व्हाट इज जैकोबियन? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर जैकोबियन? ये याद रखना है, मैं बार बार सिर्फ इसीलिए लिख रही हूँ जैकोबियन। हाँ, यहाँ पे हमने लेटर पढ़ाया थी b इक्वल टू y, वहां पे हमने y को नहीं, आप x भी ले सकते हो। सिर्फ ये है कि जब मैं v को y ले रही हूँ तो x की वैल्यू uv बन जा रही है, इजी हो रहा है। अब अगर आप v को x ले लोगे, अंडरस्टैंड, अगर आप v को x ले लोगे, ठीक है, तो आप क्या, आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? u बाई v। तो डिवीजन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है जैकोबियन में। जैकोबियन में जितना प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन रहे, जैकोबियन इजी होता है। तो जितनी इजी सपोजिशन करोगे उतना इजी आंसर निकलेगा, अदरवाइज आप कुछ भी ले सकते, देयर इज नो प्रॉब्लम, मेथड विल रिमेन द सेम। आप वो चीज लोगे जिससे आप x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y u निकाल सको, u एंड v, और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u और v निकाल सको। बस आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर पाओ, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये जो हमने रिलेशन यहाँ पे लिखा है, रीजन बीइंग आई टेल यू, ये यहाँ पे अगर आप देखो हमने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u भी निकाली है, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u भी निकाली है, ये निकलनी चाहिए बस जो आप सपोज करते हो। क्योंकि अब ये देखो रीजन क्या है, व्हाट इज जैकोबियन? जैकोबियन क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू u, है ना, और डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू v। अभी हमने सिंगल वेरिएबल में भी क्वेश्चन किया था, dx बाय du आया था, तो आपने x का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ u निकाला था, तभी आप डेरिवेटिव निकाल पाए थे। सिमिलरली यहाँ पे जैकोबियन में हमें डेरिवेटिव्स चाहिए, तो अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u भी चाहिए, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u भी चाहिए। तो अगर आप x को इन टर्म्स ऑफ u भी लिख पाओगे और y को इन टर्म्स ऑफ u भी लिख पाओगे, तभी डेरिवेटिव निकाल पाओगे। तो बस वो सपोजिशन लेनी है जिससे आप, ये देखो ये जो हमने स्टार रिलेशनशिप लिखा है, ये हमने क्यों लिखा है? बिकॉज इसकी हेल्प से अब हम जैकोबियन निकालेंगे। तो अगर आप ये रिलेशन नहीं लिख पाओगे अपने क्वेश्चन में, तो आप जैकोबियन नहीं निकाल पाओगे। तो जितनी इजी सब्स्टिट्यूशन लोगे इतना इजी जैकोबियन निकलेगा। बेटा क्लियर है? तो नाउ लेट अस फाइंड द जैकोबियन। गर्ल्स आप सबको क्लियर है इधर? Yes, ma'am. Okay, now can you first quickly tell me what will be the derivative of x with respect to u? So x is uv, so one function is constant, so derivative of x with respect to u will be v, then derivative of x with respect to v will be u, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u, अब y में तो u है ही नहीं है, y में सिर्फ v है, y इज इक्वल टू v, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u कितना हो जाएगा? 0। बेटा क्लियर है? एंड व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू v? दिस विल बी 1, राइट? कुछ बुक्स में उल्टा भी कर देते हैं, बिकॉज जैकोबियन में
अगर आप डिटर्मिनेंट में रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो तो कोई डिफरेंस नहीं आता, इसलिए कुछ लोग जैकोबियन में उल्टा भी लिखते हैं। So del x by del u, del x by del v, x का डेरिवेटिव with respect to all variables, y का डेरिवेटिव with respect to all variables, it's the same. बेटा आंसर इसलिए डिफरेंस आ रहा है क्योंकि आपने u लिया, उसने w लिया. So don't be confused, या मेरे अकॉर्डिंग कर लो या उसके अकॉर्डिंग कर लो, स्टेप सेम है, स्टेप्स आर सेम. बेटा क्लियर है सबको? Right? So here if you see what you will get, what you will get? So Jacobian is equal to v by. Is it clear? All of you? And mod of Jacobian will be also equal to y. So that's it. So now let us put everything in the formula. Let us put everything is in the formula. So now g of uv is nothing but f of xy. F of xy तो 1 बन गया था, into mod of j. Mod of j is nothing but v. बेटा is it clear? But in this question हमें तो distribution किसकी निकालनी थी? x by y की. x by y को हमने क्या लिया था? u. हमें u की डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, हमने uv की डिस्ट्रीब्यूशन निकाली है, v तो हमने अपनी तरफ से लिया था. So therefore PDF of u कितना हो जाएगा बेटा? u हमने किसको लिया था? u was nothing x by y. क्वेश्चन यही था ना, x by y का PDF निकालो, right? Is equal to say h of u. अब अगर जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन दी होती है, किसी एक रैंडम वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है तो कैसे निकालते थे? अगर जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन एक्स वाई की गिवन है, मैंने आपसे पूछा है कि एक्स की मार्जिनल डेंसिटी निकालो, तो कैसे निकालते थे? अगर एक्स की मार्जिनल डेंसिटी निकालनी थी तो कैसे निकालते थे जॉइंट में से? गर्ल्स इधर से बताओ, आप लोग कैसे निकालते थे? कैसे निकालते थे? जॉइंट किया था आपने एफ ऑफ एक्स वाई, मेरे को याद है 2 क्वेश्चंस पर, अगर डिस्क्रीट का केस था आप कॉलम वाइज ऐड कर देते थे, अगर कंटिन्यूस का केस था तो हम क्या करते थे? दूसरे वेरिएबल के साथ इंटीग्रेट कर देते थे. जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है u और v की, अगर u का फंक्शन निकालना है तो क्या करेंगे? v के साथ इंटीग्रेट कर दोगे. यस और नो? सो दिस इज व्हाट, दिस विल बी इंटीग्रेट. आप g ऑफ uv को इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू v. बेटा क्लियर है? राइट. अब मुझे एक और चीज बताओ, v की रेंज, व्हाट वाज v? v आपने क्या लिया था? कौन सा रैंडम वेरिएबल था? अब मुझे रेंज चाहिए. व्हाट वाज v इन टर्म्स ऑफ y? v की वैल्यू हमने कितनी ली थी? y. व्हाट वाज रेंज ऑफ y इन द क्वेश्चन? 0 to 1. तो देयरफॉर v की रेंज कितनी हो जाएगी? इज इट फाइन? बिकॉज v was equal to y. अब इंटीग्रेट करने के लिए रेंज भी तो चाहिए होगी ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने रेंज निकाली थी. v was equal to y, y की रेंज है 0 to 1, तो dv, v की रेंज यहाँ कितनी हो जाएगी? 0 to 1. इज इट क्लियर? तो अभी आपने g of uv ऊपर निकाला है. g of uv कितना आया था? v dv, और v की रेंज कितनी है? 0 to 1. तो v की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी? v स्क्वायर बाय 2, और जब आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करोगे तो दिस विल बिकम 1. बेटा क्लियर है? यस. अब अगर वैसे आइडली यू शुड गिव द रेंज ऑफ, सो दिस इज नथिंग बट नाउ दिस इज द फंक्शन ऑफ u, तो आपको u की रेंज भी देनी चाहिए. व्हाट वाज u? व्हाट वाज u? u कितना लिया था आपने क्वेश्चन में? x ओवर y. अगर y की रेंज भी 0 to 1 है, x की रेंज भी 0 to 1 है, तो u की रेंज भी कितनी होगी? बिकॉज x की रेंज भी 0 to 1 है, y की रेंज भी 0 to 1 है, तो x ओवर y की रेंज भी कितनी हो जाएगी? 0 to 1. So u also lies between, so u is nothing but x by y, and this lies between 0 to. Beta, is it clear? All of you? Let us take one more question.
let x1 and x2 be independent random variables, each having PDF f of x is equal to e to the power minus x. So x1 और x2 दोनों का PDF कितना है? x1 का PDF कितना है? x1 का PDF कितना होगा? e raised to power minus x1 और x2 का PDF कितना हो जाएगा? e raised to power minus x2. कौन सी रेंज में? x greater than 0. So x1 greater than 0 में ये PDF हो जाएगा और x2 greater than 0 में ये PDF हो जाएगा. Rest everywhere it is 0. Rest everywhere it is 0. Is it fine? Right? Now what we have to show? We have to show that y1. What is y1? Some function of x1, x2. So y1 is x1 plus x2. What is y2? x1 over x2. So we have to show that these two random variables are independent. अब मुझे बताओ आप independent कैसे show करोगे? आपको show करना है y1 and y2 are independent. So we have to show y1 and y2 are independent. तो कैसे show करोगे? कोई भी दो random variables हम independent कैसे show करते हैं? बताओ. What was the definition of independent random variables? बोलो बोलो गलत बोलोगे ना सारा. Yes. So basically we have to show कि जो joint PDF है, so यानी कि joint PDF. So f of y1 y2, this can be written as the product of the individual PDFs. So f of y1 into f of y2. या फिर not even PDF, अगर आपको वो थ्योरम याद है जो हमने करी थी. So basically joint PDF को हम break कर सकते हैं as two separate functions. One is a function of x and another is a function of y. So अब इस क्वेश्चन में हम यही टेक्निक लगाएंगे. पहले हमें joint PDF निकालना पड़ेगा using Jacobian method. Because हमें अब यहाँ पे y1 is function of x1 x2, y2 is function of x1 x2. तो पहले हम joint PDF निकालेंगे. So I think that is clear now. So if you see, first of all, it is given to me that the joint PDF of x and x1 और x2 दोनों का PDF है e raised to power minus x और दोनों independent है. इसका मतलब joint PDF of x1 and x2 can be written as what? PDF of x1 into PDF of x2. तो PDF of x1 कितना है? e raised to power minus x1, e raised to power minus x2. तो ये तो बन गया joint PDF. किसका? x1 x2 का. अब हम जैकोबियन वाला मेथड लगाएंगे. तो अब देखो, अब यहाँ पे y1 कितना है? y1 is x1 plus x2 और y2 कितना है? x1 plus x2, x1 over x2. तो बेटा अगर आप देखो, अब पहले वेरिएबल्स थे हमारे पास x1 x2 और न्यू वेरिएबल्स क्या बन गए? y1 y2. तो जब आप जैकोबियन निकालोगे, जैकोबियन क्या बनेगा? व्हाट इज j? इस केस में u और v की जगह क्या है आपके पास? x1 x2. तो जैकोबियन क्या बनेगा? डेल्टा x1 ओवर डेल्टा y1 ओवर डेल्टा x1 ओवर डेल्टा y2. बेटा क्लियर है सबको? और इधर क्या आ जाएगा? डेल्टा x2 ओवर डेल्टा y1 और इधर क्या आ जाएगा? डेल्टा x2 ओवर डेल्टा y2. तो पहले हमें क्या चाहिए? x1 एंड x2 चाहिए इन टर्म्स ऑफ y1 एंड y2. तो अगर आप देखो, पहले इजी रिलेशन यूज करते हैं. सेकंड रिलेशन से अगर आप देखो, x1 कितना आ गया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1? x1 इज y2 इंटू x2. बेटा क्लियर है? तो अब हमने क्या किया? x1 की वैल्यू फर्स्ट रिलेशन में पुट कर दी. x1 की वैल्यू अगर आप फर्स्ट रिलेशन में पुट कर दोगे तो y1 कितना आ जाएगा? y2 x1 की वैल्यू कितनी है? y2 x2 और प्लस x2. बेटा क्लियर है? सेकंड रिलेशन से हमने x1 की वैल्यू निकाली, उसको फर्स्ट रिलेशन में पुट कर दिया. तो अगर आप देखो, ये जो नया रिलेशन बना है, यहाँ से x2 की वैल्यू आ रही है. अगर मैं x2 कॉमन ले लूं तो x2 कितना हो गया? y1 इज इक्वल टू x2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया? y2 प्लस 1. बेटा क्लियर है ऑल ऑफ यू? तो यहाँ से x2 की वैल्यू कितनी आ गई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2?
in terms of y1 y2. What is x2? y1 over 1 plus y2. बेटा क्लियर है? बेटा क्लियर है? और ऑलरेडी हमने x1 की वैल्यू निकाल ली थी. व्हाट वाज x1? y2 into x2. तो जब हम x2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो x1 कितना आ जाएगा? y1 y2 over 1 plus y2. बेटा यहां तक क्लियर है सबको? तो ये हमने इन दोनों रिलेशंस को यूज करके वैल्यूज निकाली हैं y1 y2 की टर्म्स में x1 x2 की, बिकॉज हमें आगे जैकोबियन निकालना है. बेटा क्लियर है? गर्ल्स क्लियर है? तो अभी रिलेशन आ गया, डिफरेंशिएशन से जैकोबियन निकल जाएगा. तो ये देखो, ये जब आप इसको जैकोबियन को सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस एज द जैकोबियन. ऑल ऑफ यू विल सॉल्व दिस जैकोबियन. बेटा क्लियर है? हो जाएगा, डिफरेंशिएशन है ये. राइट. सो नाउ व्हाट इज द जॉइंट डेंसिटी? जॉइंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? What will be joint density of y1 y2? So joint density of y1 y2 will be what? Joint density of x1 x2 into Jacobian. Jacobian ka mod. So that's, let us put the values. So now joint density of x1 x2 अभी हमने पीछे निकाली थी first step में. What was the joint density of x1 x2? अभी हमने निकाली थी, कितनी थी? e raised to power minus x1. So if you see, this is e raised to power minus of x1 plus x2. और जैकोबियन की वैल्यू कितनी आई है? y1 over 1 plus y2 का होल स्क्वायर. अब सिंस दिस इज अ फंक्शन ऑफ y1 y2, तो हम x1 plus x2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं. x1 plus x2 किसके इक्वल था? y1 के. तो ये फंक्शन कितना बन गया? e raised to power minus y1 into y1 over 1 plus y2 का होल स्क्वायर. So that's it. ये आ गया आपका जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. अब हमें शो करना है that these random variables are independent. तो बेटा हमने थ्योरम करी थी, अगर हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन में वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, I can write it as some function of y1 and some function of y2. Then also our random variables are independent. तो बेटा अगर आप यहाँ पे देखो, this whole can be written as e raised to power minus y1 को हमने एक तरफ कर दिया, y1 को एक तरफ कर दिया, into 1 over 1 plus y2 whole square. So if you see, this is how much? So if you see, this is some function of y1 into some function of y2. And obviously they are not PDF. हमने PDF नहीं शो किया, हमने ये शो कर दिया है. This is some function of y1 and some function of, कुछ भी h भी लिख सकते हो. h of y1, k of y1, choice is yours. So this is some function of y1 and some function of y2. So by definition, y1 and y2 are independent. Is it fine? Right? So just go through these questions again. I'll stop here.